Hello and welcome to the Kubernetes course Beginner to Advanced presented by Skillar. My name is Anukra Chaturvedi and I will be your instructor throughout the course. First of all, you should be know about for what audience this Kubernetes is made for. क्या हर कोई इसे पढ़ना चाहता है? क्या हर कोई इसे पढ़ सकता है? या फिर एक सेट ऑफ इंडिविजुअल्स पढ़ सकते हैं इसको? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो चलिए इसका आंसर ले लेते हैं. So there are some prerequisites before learning or jumping over the Kubernetes. Okay, but if these prerequisites are not successfully completed, that doesn't mean that you cannot learn. Okay, but these are important, and if it is available in your pocket, in your knapsack, then trust me, it will be a cherry in a cake. Okay, now let's talk about what are the prerequisites. The first and the foremost is SDLC, basic knowledge of SDLC, that is software development life cycle. आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो किस फेजेस में होता है. टेस्टिंग फेज में होता है, डेवलपमेंट फेज में होता है, डेवलपमेंट के बाद उसकी फिर टेस्टिंग होती है, कंटेंट राइटिंग होती है, एंड ऑल दैट स्टफ. यू शुड जस्ट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट ऑल द फेजेस ऑफ द SDLC. बट अगर आपको नहीं भी पता, नो इशू. Okay, but if you know that fact, then again it's a benefit for you. Second thing that you must aware of the fact is Linux platform. Most of the individuals or students back off because they never worked on the Linux platform. So as a certified Kubernetes administrator, I prefer to always use Linux platform. Okay, because it has so many benefits over the Windows. I will not jump over that on that part, but you should be aware of the Linux platform. लेकिन अगर आप नहीं aware है तो क्या? तो भी कोई दिक्कत नहीं है. No worries, because at the time of lab on the Kubernetes, I will explain each and every command in detail. Again, if you know the Linux platform, it would be easier. If you don't know about Linux platform, then you have to do some hard work at that time of lab. All right. Okay. So, and the third tool is basic knowledge of containerization tool or containerization engines. It might be a Docker, it might be a Rocket, it might be a Containerd, whatever you choose, it's up to you. But you should know what is the container is. What the hell is this container and why it is so in boom. Okay, if you don't know about the containers, no worries, you can opt the Skillar course, which is made by one of the industry expert and totally on the Docker only. So you can opt that course and learn from that. But if you don't know about the containerization, I would prefer just go through the documentation of the containerization, how it works, and then choose the Kubernetes course. Okay, later on I will explain the basic terminologies of the container also. All right, now the next prerequisite for this Kubernetes course is cloud platforms knowledge. It might be AWS, it might be Azure, it might be GCP, it might be IBM, Alibaba, whatever you choose, it's up to you. But you should be know about the cloud platforms, the services which the cloud provide. Okay, although we are not using all the services in this Kubernetes course, but there should be an idea how the cloud works. All right, now if you don't know any of these skills, then you should back out this from this course or not. So answer is no. Okay, अगर आपको इनमें से कोई भी स्किल नहीं आती है, डोंट वरी, मैं हर एक प्रोस्पेक्ट पे टच करूंगा throughout the course. At the end of a course, you will be able to tackle any question of the Kubernetes, whether it's an industry level, whether it's a certified Kubernetes administrator examination level, or whatever the questions which can be
formed through the Kubernetes, and whatever the questions which are asked currently in the industry, I will go through all the questions also. Okay. Now, for who this course is suitable, किसके लिए कोर्स बना हुआ है, तो एक जनरल आंसर ये है कि कोई भी एंथुसियास्ट बंदा, कोई भी एंथुसियास्ट पर्सन जो क्यूबरनेटिस में अपना फ्यूचर करियर बनाना चाहता है, वो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है. दैट इज जनरल आंसर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अ पर्सन pursuing any technical course like in first year, second year, third year, fourth year, any of the year, like in BTech, BE, then or BSc, then he can choose that course. And of course, if a person in a industry, currently working in industry, he can also choose this course because it is a highly demanded skill. That I will come on that part, that what is the current demand of the Kubernetes, but you can opt this. And third type of person is that a newbie who wants to start his journey of the microservices. Okay, so you might be thinking that what are these terms, that microservices, containerization, SDLC, cloud platform, the blah blah, everything. You have just thrown everything on our mind. So my friend, just wait for a few minutes. Okay, after that I'll ensure that you will be clear each and every concept deep dive. Okay, so now talk about what is the demand industry. किसी चीज को पढ़ने से पहले क्यों पढ़ना है वो पता होना चाहिए आपको. तो इतनी डिमांड इसकी हाई हो गई है कि क्यूबरनेटिस को, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे सिस्टम इंजीनियर हो, चाहे वो एडवांस हो या टेक्निकल लीड हो, whatever the person profile is, he is currently using the Kubernetes somehow. And if you are a DevOps guy, then it's a mandatory skill. Of course, I do not need to tell the DevOps guy that you should know about the Kubernetes. It is a mandatory thing. So why Kubernetes? Why only Kubernetes? So देखो, जो भी Kubernetes प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो ये सारे सॉफ्टवेयर भी सॉल्व करते हैं. चाहे वो Amazon ECS हो, Docker Swarm हो, Google Container Engine हो, Azure Container Service हो, या OpenShift हो, Shell Script हो, Mesos हो, या whatever the things which are written here, these also solve the same problem that which Kubernetes target. But the market share of the Kubernetes is very high that you cannot ignore the Kubernetes. Okay, around 69% organization prefer Kubernetes over other tools, and that is the fact. All right, now let's jump to the new slide. Now, what is the Kubernetes? ये है क्या? ऐसा क्या कर दिया Kubernetes ने कि चारों तरफ इंडस्ट्री में इस समय Kubernetes की चर्चा हो रही है? इतना हाई डिमांड में कैसे आ गया? ऐसा क्या प्रॉब्लम उसने सॉल्व की जो और कोई सॉफ्टवेयर सॉल्व नहीं कर सकता? तो उस पे जाते हैं हम लोग. तो Kubernetes is an open source container orchestration tool. ओके, ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है Kubernetes की जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है इंटरव्यूज के दौरान कि what is a Kubernetes? That is a basic question. So Kubernetes is an open source container orchestration tool. मतलब क्या हुआ इसका? देखो, Kubernetes और K8s और Cube, K8s इसका फैंसी नेम है बेसिकली, ये K और S के बीच में 8 वर्ड्स, 8 अल्फाबेट्स होते हैं तो उसको K8s बोल देते हैं, फैंसी नेम है. और Cube, मैं कहीं भी Cube बोलूं या K8s बोलूं या Kubernetes बोलूं पूरा, तो उसका मतलब एक ही है. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल हो. ठीक, ओपन सोर्स कैसा सॉफ्टवेयर है? कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है. ऑर्केस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है मैनेजमेंट. ओके, जस्ट लाइक योर डायरेक्टर फ्रॉम योर कॉलेज मैनेजेस योर टीचर and your teachers manages the students, similarly the Kubernetes manages the containers. Okay, so Kubernetes is an open source container management tool or orchestration tool. That's all.
दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ क्यूबरनेटिस। ओके, तो ये कंटेनर क्या होता है, क्यों हमें कंटेनर को मैनेज करना है, ये क्यूबरनेटिस का जन्म कैसे हुआ, ये सब सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो अभी चलते हैं अपन उस पे। ओके, सो इट इज अ पोर्टेबल एक्सटेंसिबल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म for managing containerized workload and services that facilitate both declarative configuration and automation। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहा है, ये डेफिनेशन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली everything which is running on the containers need to be managed by some automated tools। Okay, these automated tools are like Docker Swarm, like EKS, and whatever Kubernetes. Okay, these are used to manage the containers. All right. Third point is logo of Kubernetes itself represent its responsibilities. Now, why I am saying that? Because if you have seen the logo of Docker, it is like a container. Okay, Docker is like a container. A container, we generally use container term in respect of transferring export and import। Okay, वो containers होते हैं ना जो rectangle shape में होते हैं, वो आप यूज करते हो ships पर और ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो ये जो डॉकर क्यूबरनेटिस का जो लोगो है वो एक शिप की स्टीयरिंग व्हील जो कैप्टन के हाथ में होती है उसकी तरह लग रहा है। तो ये बताना चाह रहा है कि लोगो ऑफ क्यूबरनेटिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट इट्स रिस्पांसिबिलिटी। सो इट इज मैनेजिंग कंटेनर्स, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील मैनेज करता है शिप कंटेनर्स को, वैसे ये जो क्यूबरनेटिस है वो मैनेज करता है डॉकर कंटेनर्स को या normal containers, so not only Docker container, all the type of containers। Okay, now orchestration means managing, as I have told you earlier। Now Kubernetes feature the ability to automate web server provisioning according to the level of web traffic in a production। Whatever the traffic which is being transferred over the web server, it need to be managed such that no web server is being highly threatened। Okay, that means that कोई वेब सर्वर पे इतना लोड ना आ जाए कि वो वेब सर्वर क्रैश हो जाए। ये जिम्मेदारी किसकी होती है, क्यूबरनेटिस की। क्यूबरनेटिस को देखना है कि जैसे ही लोड ज्यादा आ रहा है तो मुझे एक नया वेब सर्वर चाहिए, तो मैं एक नया कंटेनर ऑप्ट करूंगा। मैं अभी इसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करूंगा आगे फ्यूचर में, बट अभी आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं। ऑलराइट, बट अब हमने बात कर ली कि क्यूबरनेटिस एक कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल तो है, लेकिन कंटेनर से पहले, कंटेनर के आने से पहले क्या ऑर्केस्ट्रेशन टूल नाम की कोई और चीज होती थी? क्या ऑर्केस्ट्रेशन तब भी प्रैक्टिस होता था? तो आंसर है यस। देखो, व्हाट बिफोर क्यूबरनेटिस, orchestration is being practiced long before in the industry by other means। ऑर्केस्ट्रेशन जब से आईटी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, ऑर्केस्ट्रेशन तब से प्रैक्टिस किया जाता है। तब क्यूबरनेटिस था नहीं था वो अलग बात है, बट ऑर्केस्ट्रेशन प्रैक्टिस होता था। अब ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या था? ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब है मैनेजमेंट। ठीक, तो हम लोग मैनेजमेंट तो प्रोवाइड करते थे हर जगह आईटी इंडस्ट्री में। अब वो तीन प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है मेजरली। फॉर एग्जांपल ऑन प्रेमिसेस। ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है? जहां पे आप फिजिकल सर्वर सेटअप करते हो, कोई वर्चुअल सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप सारे हार्ड डिस्क वगैरह, रैम एंड सीपीयू, एवरीथिंग यू बाय physically and configure your application on that server and provide that IP and bind that IP with the DNS and the servers are running। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप ये मान के चलो कि ये ऑन प्रेमिसेस सेटअप है। ओके, जहां पर 10 सर्वर्स रन कर रहे हैं, सो ऑन। तो ये 1 सर्वर है, ये सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, सर्वर 4 है, एंड सो ऑन 10 है। ओके, ऑलराइट। सो मैनेजमेंट तो यहाँ पे भी होता था। कैसे? इसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती थी इन सर्वर्स के ऊपर, उसे बोलते थे हम लोग लोड बैलेंसर,
LB में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं। ओके, लोड बैलेंसर का वर्क क्या होता था कि जो भी ट्रैफिक आ रहा है आउटसाइड मीडियम से, इंटरनेट से, वो उसको इक्वली बैलेंस करे अमंग ऑल द 10 सर्वर्स, एज सिंपल एज इट इज। ओके, ये बेसिक वर्किंग है लोड बैलेंसर की। सेकेंड वर्किंग क्या है, जस्ट इन केस अगर सर्वर 1 क्रैश हो गया ऑन प्रेमिसेस पे, तो लोड बैलेंसर की जिम्मेदारी है कि सर्वर 1 पे कोई लोड ना भेजे। कब तक? जब तक सर्वर 1 वापस सही नहीं हो जाता। तो लोड बैलेंसर को देखना है कि उस टाइम पे जो बचे हुए 9 सर्वर्स हैं उन पे केवल लोड भेजा जाए। तो ये भी एक मैनेजमेंट काम हो गया। ओके, तो ये होता था ऑन प्रेमिसेस में मैनेजमेंट, किसके थ्रू? लोड बैलेंसर के थ्रू एंड फायरवॉल्स एंड डिफरेंट बहुत से तरीके। मैंने एग्जांपल दिया कि एक लोड बैलेंसर को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऑलराइट, सेकंड टाइप ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन इज यूज्ड इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अवेयर हो गए कि क्लाउड प्लेटफॉर्म से वर्किंग कैसे होती है, तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा AWS में ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। तो अगर नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है कि अगर आप एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हो सर्वर की, जिसमें क्या लिखा होता है कि हमारे सर्वर की 10 GB रैम है, हमारे सर्वर में ये एप्लीकेशन है, हमारे सर्वर में 2 फायरवॉल्स कॉन्फ़िगर है, हमारे सर्वर में ये DNS की IP है, ये है वो है, पूरा आप रिटन फॉर्मेट में एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप को प्रोवाइड कर देते हो। ठीक, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है? हेल्थ चेक लेता है, किसकी? वर्चुअल मशीन्स की। अब आप बोलोगे वर्चुअल मशीन्स क्या होती है? तो माय फ्रेंड, एक बेसिक मशीन होती है जो आप वर्चुअली क्रिएट करते हो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ये नहीं पता तो आप डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम क्या होता है कि अगर कोई VM वर्किंग है और वो क्रैश हो जाती है बाद में किसी कारणवश, तो जो कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग आप एक नया VM क्रिएट कर दोगे। मान लो कि ये किसी कारण क्रैश हो गई, तो एक नया VM क्रिएट हो जाएगा ऑन द स्पॉट थ्रू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये भी एक टाइप का मैनेजमेंट ही हुआ। तो इसके लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के लिए हम लोग VPC, ASG, ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड अदर सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो हमारा ऑर्केस्ट्रेशन यूज होता है वो यूज होता है कंटेनर्स पर, एंड दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग नाउअडेज। We have to provide orchestration on the container as well. So modern day companies uses container to run their tools and application, and for that purpose Kubernetes comes out to be best tool to manage all stuffs. Okay, तो containers को manage करने का जो जिम्मेदारी उठाई है वो Kubernetes ने उठाई है। उसने कहा कि ठीक है, आप हमको कंटेनर दो, हम मैनेज करके देंगे। तो ये रहा Kubernetes की इंट्रोडक्टरी कहानी, वर्किंग क्या होती है उसकी। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में कि क्यूबरनेटिस का जन्म कहाँ से हुआ। तो हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्यूबरनेटिस का असली जन्म करा है गूगल ने। तो आप कहोगे गूगल भाई साहब, आपने इतना अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया कि आज हमको क्यूबरनेटिस कोर्स लेके पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा आंसर ये होगा कि अगर गूगल भाई साहब ने सॉफ्टवेयर ना बनाया होता तो आज की इंडस्ट्री को कंटेनर्स पे शिफ्ट होने में बहुत से साल लग जाते। और जस्ट लुक एट द ईयर 2003-2004, द गूगल क्रिएटेड अ सॉफ्टवेयर नेम कॉल्ड बॉर्ग सिस्टम। गूगल के डेवलपर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया बॉर्ग सिस्टम नाम से, और उन्होंने अपने प्रोडक्ट में वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। गूगल का तब भी खूब बोलबाला था 2003 और 2004 में, तो उनके डेवलपर्स ने वहां पर उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब बट गूगल के डेवलपर्स को लगा कि यार ये सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है बॉक्स सिस्टम, और हम लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, सो कॉल्ड अच्छे लोग भी हैं, तो क्यों ना हम इस सॉफ्टवेयर को दान कर दें और इसको ओपन सोर्स कर दिया जाए। तो इन्होंने अप्रोच किया किसको? इन्होंने अप्रोच किया CNCF को, क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन को। उन्होंने कहा गूगल ने कि भैया हम चाहते हैं कि आप इसको, हम एक अपना सॉफ्टवेयर है बॉर्ग सिस्टम, इसको आप अडॉप्ट कर लो और ओपन सोर्स कर दो और आगे की मैनेजिंग आप देख लो।
हमने बहुत इससे कमाया, हमने बॉर्ग सिस्टम से बहुत कुछ कमा लिया, अब हम चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज का फायदा उठाएं और इसको यूज करें। उसके बाद ये जर्नी आगे बढ़ी जिसमें आप देख सकते हो फॉलोइंग बॉर्ग गूगल इंट्रोड्यूस द ओमेगा क्लस्टर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बॉर्ग के बाद ओमेगा आया जो इनका एडवांस वर्जन था, और उसके बाद इन्होंने गूगल ने ही इंट्रोड्यूस कर दिया क्यूबरनेटिस को। क्यूबरनेटिस के बाद इस क्यूबरनेटिस को दे दिया गया सीएनसीएफ को, सीएनसीएफ ने फर्दर लाइनक्स फाउंडेशन को दिया, लाइनक्स फाउंडेशन से वो आगे तक स्प्रेड हुआ और आज इतना ज़्यादा यूज होता है। तो गूगल का कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और 2003 और 2004 में गूगल के डेवलपर्स ने वो बनाया था। तो आप सोच सकते हो उनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग को, आप सोच सकते हो कि गूगल के डेवलपर्स की कितनी अच्छी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग थी। तो ये रही हिस्ट्री, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि गूगल से लेके आज हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की फीचर्स ऑफ क्यूबरनेटिस। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो। These are the most asked question in the interview. Just tell, वो ऐसे पूछेंगे आपसे कि just tell me the 5 features of the Kubernetes. Okay, so मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या, ऑटोमेट वेरियस मैनुअल प्रोसेस। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वर्चुअल मशीन आपका कोई कंटेनर डाउन हो जाता है तो क्यूबरनेटिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस क्यूबरनेटिस को तुरंत लॉन्च कर दे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर रात को 2 बजे कोई कंटेनर डाउन हो जाता है जिसपे एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो रात को 2 बजे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को उठना ना पड़े, क्यूबरनेटिस अपने आप उठ के जाग के एक नया कंटेनर लॉन्च कर दे और प्रोडक्शन में भेज दे। तो ऑटोमेट कर दे प्रोसेस, पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, इंटरैक्ट विद सेवरल ग्रुप ऑफ कंटेनर्स। अगर 2 कंटेनर्स आपस में बात कर रहे हैं तो क्यूबरनेटिस की जिम्मेदारी होती है उनको बात करवाना, ठीक है। ऑलराइट, थर्ड जिम्मेदारी जो होती है, प्रोवाइड्स एडिशनल सर्विसेज एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर्स। क्यूबरनेटिस ऑफर्स सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज सर्विसेज। तो क्यूबरनेटिस एडिशनल सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है किस पर, कंटेनर्स पर। ओके, सेल्फ मॉनिटरिंग है, यानी क्यूबरनेटिस कॉन्स्टेंटली चेक द हेल्थ ऑफ नोड्स एंड कंटेनर्स। अब ये नोड्स और कंटेनर्स का जो कॉन्सेप्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो पे रखूंगा, बट वो कंटिन्यूअस हेल्थ चेक्स लेता रहता है कि कोई भी अगर कंटेनर डाउन होता है तो तुरंत उसका हेल्थ चेक नेगेटिव आता है और क्यूबरनेटिस को इंस्ट्रक्ट होता है कि अब नया कंटेनर लॉन्च कर दो, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशंस के मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट करो। सेम कॉन्फ़िगरेशन के मल्टीपल रेप्लिकास क्रिएट हो जाते हैं और उनको तुरंत लॉन्च कर दो ताकि सब जगह इक्वल वर्कलोड डिवाइड हो। दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज। व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग? अच्छा, वर्टिकल स्केलिंग में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज होती है। अगर आपके पास 2 GB की इस समय हार्डवेयर है, वर्टिकल में होगा तो 4 GB का लॉन्च होगा, हॉरिजॉन्टल में तो 2 GB का एक और रेप्लिका लॉन्च हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ कंटेनर बैलेंसिंग and automate rollout and rollback. All we'll talk about in the later videos. That's all from my side for this video, and we will meet on the next video. Thank you.